Welcome students in today's lecture. Today we are going to learn classification of salt solutions. Okay. और लास्ट लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया था? लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट. ओके, नॉर्मल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट एंड basic salt, and the fourth one was double salt. Okay, so these was the types of salt, but today we are going to learn classification of salt solution. Okay, salt solution may be acidic, may be basic, may be neutral, or okay. Now what I want to say you, classification of salt solution, the aqueous solution of some salts are either acidic, basic, or alkaline, or neutral. When the salt is dissolved in water, it undergoes hydrolysis. हाइड्रोलिसिस का मीनिंग होता है ब्रोकन डाउन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर. तो ब्रेक डाउन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, मतलब सॉल्ट है, कैटायन और एनायन डिफरेंट सेपरेट हो जाएंगे. ओके, सो दिस इज हाइड्रोलिसिस. द हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट मेक्स द सॉल्यूशन आइदर एसिडिक, बेसिक, और अल्कलाइन, और न्यूट्रल. ओके, the behavior of different types of salt in aqueous solution we will study. Now what we can do, first we have to see the salt which is made up of from which acid and bases. Okay, first of all we classify, we will क्लासीफाई दी सॉल्ट के जो सॉल्ट है वो कौन से एसिड और बेसिस से बना हुआ है. ओके, फर्स्ट कैटेगरी. ओके, पहला कैटेगरी क्या है? फर्स्ट कैटेगरी इज, शॉर्टकट मेरा ये है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस. ओके, मीन्स मैं कहूंगा, आई विल से इट, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, SA plus SB, salt of strong acid and strong base. Okay, number two is salt of strong acid and weak base. ऐसा सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के कॉम्बिनेशन से बना है. ओके, नाउ आई विल से salts of strong acid plus weak base. Third is what? Salts of weak acid. Okay, salts of weak acid, strong base. ऐसे सॉल्ट्स जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से बने हैं. ओके, एंड द लास्ट वन इज सॉल्ट्स ऑफ weak acid and weak base. Now we have the four
categories of acid and bases from which we can get different salts. Okay, strong acid strong base से मिलने वाला salt, strong acid weak base से मिलने वाला salt, weak acid strong base के कॉम्बिनेशन से मिलने वाला सॉल्ट, और वीक एसिड और वीक बेस के कॉम्बिनेशन से मिलने वाला सॉल्ट. ओके, नाउ अभी ये शॉर्टकट्स मैं रिमूव कर दूंगा. ओके, नाउ विल सी एग्जांपल्स. ओके, विल सी एग्जांपल्स. How can we take examples of these different categories? Okay, salts of strong acid and strong bases. The example is sodium chloride, potassium sulfate. Okay, the aqueous solutions of such a type of salts are neutral, having pH 7. These do not undergo hydrolysis. पहला कैटेगरी, फर्स्ट कैटेगरी सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड. स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल बताइए मुझे. वेल नोन एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड. स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड. स्ट्रॉन्ग एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड. ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड गिविंग राइज टू सोडियम chloride. So this sodium chloride is a salt of strong acid and strong base. When sodium chloride is taken in a test tube and its aqueous solution is prepared, that aqueous solution of sodium chloride salt will show neutral pH, will show neutral nature, because it consists of hydrochloric acid and sodium hydroxide. They will completely vanish to each other because both are the strong acid and bases, and acidity or basicity was completely neutralized. And after the formation of NaCl, when the NaCl dissociates in the water, it will form Na positive and Cl negative. So there is no chances to produce acidity or basicity. That's why there is this solution of NaCl will be neutral. इसका pH 7 रहेगा. वैसे ही अगर हम यहाँ पर क्या ले लें, सल्फ्यूरिक एसिड ले लें, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लें, सल्फ्यूरिक एसिड ले लें या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लें, तो भी क्या बनेगा, पोटेशियम सल्फेट बनेगा. वो भी सेम कैटेगरी. इस कैटेगरी में हम कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को अगर ले लेते हैं, उससे बनने वाले सॉल्ट का सॉल्यूशन न्यूट्रल ही होगा. ओके, नाउ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस. सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस. सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस. स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल कौन सा है? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड कोई भी ले सकते हैं आप, मैं आपको समझाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रहा हूं. ओके, नाउ वीक बेस. वीक बेस ले लीजिए. फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड. अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है? वीक बेस है. स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस. ओके, दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बन रहा है? दोनों के कॉम्बिनेशन से वाटर बन रहा है. H2O वाटर फॉर्म हो गया और NH4Cl फॉर्म हो गया. अमोनियम क्लोराइड. अमोनियम क्लोराइड
is a salt of strong acid and weak base. Ammonium chloride is a salt of strong acid and weak base. And the more example is copper sulfate, okay, ammonium sulfate, ammonium nitrate, ferrous sulfate. All these salts are strong acid and weak bases के combination से बनते हैं. Okay, now अब अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट का सॉल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक होगा, ये कैसे मालूम पड़ेगा हमारे को? ये मालूम पड़ेगा हमें कैसे? हाइड्रोलिसिस से. ओके, हाइड्रोलिसिस से क्या मालूम पड़ेगा अभी हम देख लेते हैं. ओके, मैंने लिया अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस वाटर. वाटर में डिसॉल्व करेंगे हम इसको. वाटर में डिसॉल्व करने पर क्या रिएक्शन होती है? ओके, वाटर में अगर हमने इसको डिसॉल्व किया तो ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन क्या करेंगे? अगेन दे विल प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड. ओके, अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट लिया मैंने, वाटर में ऐड किया, फिर से मेरे पास में वाटर में क्या बन जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड. अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग बेस. तो स्ट्रॉन्ग बेस अपना एक्टिविटी शो करेगा, वीक बेस न्यूट्रलाइज हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा. ओके, और वो वीक है इसलिए वो उसका इफेक्ट शो नहीं कर पाएगा. ओके, दैट्स व्हाई what we can say on the basis of this hydrolysis reaction, we can say that the solution of the ammonium chloride will show acidic pH. उसका अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन जो रहेगा वो हमें एसिडिक नेचर शो करेगा. अगर हम पीएच पेपर पे चेक करते हैं या लिटमस पेपर से चेक करते हैं तो हमें एसिडिक नेचर दिखाई देगा. ओके, now third one category, salts of weak acid and strong base. weak acid, strong base. weak acid मतलब ऐसा एसिड जो क्या करता है? पार्शियली आयोनाइज होता है, जो मैक्सिमम H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस नहीं करता है, जो कंप्लीटली डिसोसिएट होकर ज़्यादा क्वांटिटी में H पॉजिटिव आयन प्रोवाइड नहीं करता है. एसिडिक एसिड. ओके, CH3COOH, एसिटिक एसिड. एसिडिक एसिड विनेगर. ओके, प्लस स्ट्रॉन्ग बेस. स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड. दोनों के कॉम्बिनेशन से कौन सा सॉल्ट बन रहा है? Now we'll see. This is positive. Sorry, this is negative. This is positive. This is positive. This is negative. Negative, positive. CH3, COOH. Sorry, COO. Na. And positive and negative. H2O. सोडियम एसिटेट CH3COO Na. सोडियम एसिटेट. ओके, सोडियम एसिटेट. ओके, सोडियम एसिटेट. सोडियम एसिटेट is a salt of weak acid and strong base. सोडियम एसिटेट का हाइड्रोलिसिस क्या होता है? CH3COONA plus H2O. Now one hydrogen and acetate ion will use CH3COOH. Remaining is OH and NaOH. हाइड्रोलिसिस हुआ सोडियम एसिटेट का. हाइड्रोलिसिस होने के बाद में बन गया एसिटिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड.
सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस, एसिटिक एसिड वीक बेस, वीक एसिड, ओके, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो अगर सॉल्यूशन में किसका सॉल्यूशन है, सोडियम एसिटेट सॉल्ट का सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में अगर हाइड्रोलिसिस होता है तो फिर से एसिटिक एसिड बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। एसिटिक एसिड जो है वीक एसिड है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा, और रिमेनिंग क्या रहेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिमेनिंग रहेगा, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड विल शो बेसिक पीएच। तो ये जो सॉल्यूशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, उसको अगर हम पीएच पेपर से, लिटमस पेपर से चेक करते हैं तो वो हमें बेसिक और अल्कलाइन नेचर शो करेगा। ओके, तो थर्ड कैटेगरी कंप्लीट हो गई। दिस वाज द थर्ड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी कंप्लीट होने के बाद में इसका और आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं, जैसे कि सोडियम एसिटेट का एग्जाम्पल दिया, सोडियम साइनाइड, ओके, सोडियम कार्बोनेट। आपको ये सब एग्जाम्पल नोट करने हैं, जो जो रिएक्शंस मैंने नहीं लिखे हैं वो आपको नोट करने हैं, ओके। इसके सिवा कोई दूसरा आपके पास में रास्ता नहीं है, आपको जो मैं बोल रहा हूँ आपको वैसे ही करना है, ओके। सो दिस इज द salt of weak acid and strong base. Now the fourth one category is salt of weak acid and weak base. Weak acid अभी लिया हमने एग्जाम्पल, एसिडिक एसिड वीक एसिड, प्लस वीक बेस। कौन सा है वीक बेस, वीक बेस का एग्जाम्पल ले लो। अभी जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले एक वीक बेस का एग्जाम्पल आपको बताया था मैंने, कौन सा, अमोनियम क्लोराइड, ओके। वीक एसिड, वीक बेस। वीक एसिड वीक बेस को स्टडी करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दो अपोजिट चीजें हैं। कैसे, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, दोनों अपोजिट चीजें हैं। पहला कैटेगरी, फोर्थ कैटेगरी, ये दोनों अपोजिट, अपोजिट बोले तो इन द सेंस कंप्लीटली स्ट्रॉन्ग कंप्लीटली वीक, ओके। तो इसका भी पीएच 7 था, इसका भी पीएच 7 रहेगा, इसका भी पीएच क्या रहेगा, 7 रहेगा, क्योंकि वीक एसिड है और वीक बेस है, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, कोई किसी तरह का एसिडिटी और किसी तरह का बेसिसिटी शो नहीं होगा, ओके। कॉम्बिनेशन से क्या बन गया है, NH4OH, हाइड्रोजन क्लोरीन HCl, and acetate ion and NH4 CH3COO, सॉरी मिस्टेक हो गई, my mistake. This is acetate ion negative, this H is positive, this is negative and this is positive, negative and positive. This is CH3COO NH4 and this is hydrochloric acid, okay. सही है या गलत है, एसिटेट आयन CH3COO नेगेटिव, H पॉजिटिव, ओके, NH4 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, ओके। तो इसमें अब आपको क्या लग रहा है कि डिसोसिएशन और जो हाइड्रोलिसिस है वो किस तरह से होना चाहिए, ओके। तो ये जो हमारा सॉल्ट है अमोनियम एसिटेट, अमोनियम एसिटेट इज ए सॉल्ट ऑफ, अमोनियम एसिटेट इज ए सॉल्ट ऑफ, सॉरी माय मिस्टेक, ओके, अमोनियम एसिटेट फॉर्म होगा, ओके, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम एसिटेट, ओके।
सॉरी मैं यहाँ पे सॉल्ट ले लिया, इसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड करना था। ओके, अमोनियम हाइड्रोक्साइड करना था। ओके, वीक बेस बोल रहा हूँ मैं, मैंने सॉल्ट ले लिया था। ओके, वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, sometime it happens. Okay, the weak base is ammonium hydroxide and weak acid is acetic acid. Okay, दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बन गया है? अमोनियम एसिटेट बन गया है, जो कि सॉल्ट है। ओके, अब ये अमोनियम एसिटेट, दिस अमोनियम एसिटेट CH3COO NH4 प्लस H2O क्या फॉर्म करेगा? फिर से सेम प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, एक हाइड्रोजन और एसिटेट ग्रुप CH3COOH and NH4 and OH, NH4OH. Again on hydrolysis, ammonium acetate will produce acetic acid and ammonium hydroxide. They will weak acid and there is weak base, and they will produce the salt of solution of neutral pH. Okay, so this is all about the classification of salt solution. Okay, now the examples we can take ammonium cyanide NH4CN, example of fourth one category. Okay, ammonium acetate, example of fourth one category. Okay, so this is the classification of salt solution. The salt solution एसिडिक हो सकते हैं, बेसिक हो सकते हैं, न्यूट्रलाइन हो सकते, न्यूट्रल हो सकते हैं। ओके, तो वो हमने आज यहाँ पर समझा। ओके।